Recording. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we are talking about the parity generator and parity checker. So what is this parity and all? Let us discuss it here. Okay. Okay. 1 second. Someone has come up. So let me add him. Okay. Javed has come up again. Mansha Bhatt and all, open up your cams. If you want to stay in a class, you got to open up your cam. Khalid, Javed, and Mansha Bhatt. Open up your cam quickly. So parity generator and parity checker. You may have some little idea about it, okay, already, but let us discuss it so that we are all on the same page and we generate the logic of it. So what is parity? It is actually error detection and correction. It's about error detection and correction. फर्ज कीजिए कि एक डिवाइस A है या it's not only between the device A and device B, but within a device also you want to transfer some data. So data can be like 1 0 1 0 0 1 and so on and so forth, and you are sending it through some channel. Okay, in networking you are sending it through Wi-Fi, then mobile towers, and then it's going through the coaxial cable somewhere, optical fibers these days. For example, this Airtel, it is an optical fiber network. So you're transmitting this data through some kind of a channel. Either it could sometimes go through the satellite also. It could go somewhere from somewhere to somewhere. Okay, and I mean it could be wired or it could be wireless communication, wherein you are transferring your data from A location to B location, or from A device to B device, or within a device you are transferring it using the system bus from your pen drive to the hard drive. Okay, and you have something in a RAM. Okay, and you have costlier RAMs which is called as an error checking code, where we have, okay, you have error recognition mechanism on the RAM itself. So the simplest way of doing this thing of error checking and detection comes into the mind of parity. Even though we have a hell lot of things in it, but the first thing, which is the ABC of error detection and correction, is the parity. That if we have the data and we have a single error change, for example, if we have a single error change, if we have a single bit change, for example, we have 1 0 1 0 1, and when we transferred it, it came here as 1 0 1 0 0. This bit got an error. This bit got an error. Now there are a lot of things in it to see. Firstly, that error has occurred. That's called only error detection. Okay, then there is error correction. For that we need to know which bit exactly is in error. So then we have to do a lot more. Okay, to understand which bit is in error. एक तो क्या error आ गया भाई साहब, दूसरा हो गया कि भाई अब कौन सी bit error में है तो उसको ठीक करने का है. यानी कि अगर वो 0 है उसको 1 बनाऊंगा, अगर 1 है तो वो 0 बनाऊंगा. यानी कि अगर ये एरर में है तो अगर ये 1 यहाँ पे 0 है, अगर मुझे पहचान में आ गया कि ये बिट एरर में है, तो मैं देखूंगा कि अगर ये 0 है मैं इसको वापस 1 बनाऊंगा, तो ये परफेक्ट बन गया जो यहाँ पे था. अब इसमें सिर्फ एक बिट एरर आ गया फिलहाल, ठीक है ना. तो इन सूरत के लिए हम या तो ऑड पैरिटी करते हैं या इवन पैरिटी करते हैं. सो व्हाट डज दैट मीन? हम क्या करेंगे? इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी. दैट इज लाइक दिस. सी हाउ वी कैन फिगर इट आउट कि एरर आया है या नहीं आया है, ठीक है ना. लेट मी टेक अ small pen. Say for example, I have got 1 0 1 0 as an even numbers. I'm going to say 1 2 3 4 bits. I have got 4-bit data, and I put up one more bit here as a parity bit, and I could have a parity, either odd parity or I can have the even parity. ठीक है ना, दोनों कर सकते हैं. तो चले हम फिलहाल इवन पैरिटी करेंगे. पहले इवन पैरिटी बोलता है कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस है इस डेटा के अंदर, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस है तो फिर आप यहां पे 0 डालें to specify that my data has even number of ones. ठीक. और अगर मेरे पास यहां पे फॉर एग्जांपल डेटा ऐसे था
कि the ones were in the odd number of ones I have 3 ones here, then put up here 1 to make the total even. यानी कि with the parity bit and with the date, this is the data bit and with parity bit, total bits are even. And in this case also, when my data was having odd number of ones, putting a parity as a 1 makes total ones as even. बन गया ना, क्योंकि मेरे पास 3 ones थे, मैंने और एक 1 ऐड कर दिया ताकि टोटल इवन बन गया। अब जब मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं, as I am sending it as with the data bits plus this extra this bit। अब फर्ज कीजिए ये जो 1 0 था ये 1 बन गया, इसमें एरर आ गया, इस 0 में एरर आ गया, ठीक है ना, तो ये 1 बन गया, तो मैंने डेटा ट्रांसफर किया ऐसे। लेकिन मुझे पता है कि जो ये पैरिटी बिट है इसके साथ मिला के जो मेरा सारा डेटा है, it has to be even if I am doing the even parity। so जब मैं destination पे देखता हूं ये डेटा, I see it at a destination and I count the number of ones, it's coming 1 2 3 4 5 which is odd। so मुझे पता चलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, एरर आ चुका है, क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन पे जो नंबर्स आएंगे वो इवन, क्योंकि मैंने इवन पैरिटी सेट की थी। अगर डेटा मेरा ऑड वंस होते तो पैरिटी मैंने 1 किया होता, तो टोटल नंबर ऑफ गॉट टू बी इवन, टोटल नंबर हैज टू बी इवन। लेकिन जो नहीं आ रहा है यहाँ पे, जब मैंने इसको ट्रांसमिट किया, मैंने ये रिसीव किया ये डेटा यहाँ पे, और मुझे ऑड नंबर ऑफ वंस आ गए, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि भाई, उसका मतलब क्या है कि कुछ एरर आया है। सो दिस इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड एरर। तो मुझे पता चला कि एरर, ये पैरिटी से हम करते हैं। अब फर्ज कीजिए कि मेरे पास डेटा था 1001 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अगर मुझे इसकी इवन पैरिटी करनी है तो व्हाट शुड आई पुट अप हियर? आई शुड पुट अप हियर Mansha Bhatt, why are not opening camera? Sohavani and Mansha Bhatt, open up your cam. Let me open up you guys for the chat. Participants. Mute all. Hello participants. Yes. Somebody is chatting. Ahsan is saying 0. Aman is saying 0. MashaAllah. You can open up the mic also. You can talk straight away. So I am saying 0. Why? Because total number of ones have to be even. It is already even. It is already even, दो 1 है ना मेरे पास, already even है, तो मैं 0 रखूंगा, because in totality I should have an even number of bits, even number of ones। so चूंकि already even data था तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया ताकि टोटल। अब फर्ज कीजिए 2 बिट्स में एरर आ गया, एक तो इस बिट में एरर आ गया, ये वाली बिट में एरर आ गया, और ये वाली बिट में आ गया, ठीक है। सो द डेटा कम अप इज 0 0 0 0, ठीक है ना। या इस वाले बिट में एरर आ गया, इसको छोड़ देते हैं, इस वाली बिट में एरर आ गया, तो द डेटा कम्स अप इज 0 0 1 1 एंड 0, ठीक है। मुझे 2 बिट्स में एरर आ गया, जब मैं देखता हूं मेरे 2 बिट्स में एरर आ गया और मैं डेस्टिनेशन पे देखता हूं, व्हाट आर द नंबर ऑफ वंस, इवन और ऑड? इवन। तो मुझे लगेगा कि एरर आया ही नहीं, जबकि 2 बिट्स में एरर था, है ना, क्योंकि मैं अगर एक बिट में एरर आता तो वो इवन को ऑड बना देता, तो मुझे को पता चलता भाई एरर आ चुका है। लेकिन अब अगर 2 बिट्स में एरर आ गया है, ठीक है ना, तो मैं स्किप कर पाऊंगा, क्योंकि वो इवन बन जाएगा ना, 2 बिट्स का एरर वो वापस इवन बनेगा ना, ठीक है ना। तो मुझे पता नहीं चलेगा कि एरर है कि नहीं। अगर 3 बिट्स का एरर है तो फिर से पता चल सकता है, क्योंकि वो इसको ऑड बनाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास डेटा अब ये है, एडमिट ऑल सिदरतुल मुंतहा एंड रिजवान बशीर, दो स्टूडेंट और आ गए, कोई बात नहीं। नाउ लुक हियर, मैं क्या काम कर रहा हूं कि मैं अब एक चीज कर रहा हूं कि मेरे पास 3 बिट्स का एरर आएगा फॉर एग्जांपल, सो वो फिर से इसको ऑड बनाएगा, तो आई कैन फिगर इट आउट कि एरर आ गया। देखिए, यानी कि अगर मेरे पास 1001 है डेटा, सो इट इज, अगर यहां पर भी 0 है फॉर एग्जांपल 1000, so what should be my parity bit here? जो parity bit में ऐड करूंगा, will that be 1 or 0? if it is even parity, that has to be 1, because why? Because total, in total it should be even.
अब फर्ज कीजिए 3 बिट्स में एरर आ गया, इसको भी एरर आ गया, इसको भी आ गया, इसको भी आ गया। सो ये 1 बन गया 0, ये 0 बन गया 1, ये 0 बन गया 1, 0 और 1। जब मैं टोटल देखता हूं वंस एट अ डेस्टिनेशन, आई एम सेइंग 1 2 3 इवन नंबर ऑफ वंस, आई डिटेक्ट नो भाई सब एरर आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर 1 बिट में एरर आ गया मैं पकड़ पाऊंगा, अगर 3 बिट में एरर आ गया मैं पकड़ पाऊंगा, यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स में एरर आ गया मैं पकड़ पाऊंगा, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स में एरर आ गया मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ये वाली पैरिटी जो हम करते हैं, ये ऑड नंबर ऑफ बिट्स में अगर एरर आ गया उसमें हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये तो पैरिटी का लॉजिक है। हमें करना क्या है, लेकिन हमें पैरिटी का सर्किट बनाना है बेसिकली, पैरिटी डिटेक्टर एंड करेक्टर, ठीक है। इसका हमें सर्किट बनाना है। क्या होता है? जी क्या होता है? फिर से बोले क्वेश्चन। सर पैरिटी, इसका मतलब क्या होता है? हमें क्या करना है होता है इससे? मैं जो बता रहा हूं तो यही तो करना होता है जो मैं बता रहा था अभी तक। Parity is a bit which we add at the end, okay, to make overall ones either even if it is even parity, so that we can check कि error आया है या नहीं आया है at destination. This is what parity is all about, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हम odd parity कर सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, odd parity। मतलब odd parity में क्या करेंगे हम कि अगर मेरे पास डेटा है 1 0 0, I will make the total ones as odd। जैसे मैं यहाँ पे total ones as even बना रहा था, उस हिसाब से parity bit में ऐड कर रहा था। अब मैं total ones को odd बनाऊंगा, यानी कि मैं देखूंगा भाई 1 0 0 1, what is the total number of bits, odd or even? इवन। ये odd है ना, एक ही वन जो है ना यहाँ ऑड पे, है। ऑड है सर। तो ऑलरेडी odd है। अगर even parity होता तो मैं इसको यहाँ पे 1 लगाता, ताकि total number of ones becomes the even, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ऑलरेडी odd है, so I will put up a 0 here, है ना। अब जब ये डेस्टिनेशन पे जाएगा, अगर इसमें कहीं पर एरर आया है, फॉर एग्जांपल 1 बिट या 3 बिट, इसमें भी ऑड ही चेक करेगा ये, ठीक है ना। इफ 3 बिट एरर आ गया है, 5 बिट एरर आ गया है, या 1 बिट एरर आ गया है, तो ये पकड़ पाएगा। लेकिन एट दैट टाइम आई विल नॉट चेक द नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन, आई विल चेक वन नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। देखिए फर्ज कीजिए यहाँ पे, इसमें यहाँ पे इस बिट में एरर आ गया, सो इट हैज चेंज्ड टू 1 1 0 0 0, and I am checking the number of ones. Number of ones are here what? 2. Is 2 even or odd? Even. But I was doing odd parity, so I will conclude that हो error आ गया है भाई साहब, इसमें कहीं पे error आ गया है। Do you understand? So odd parity में हम total number of parity bit last में add करते हैं, ताकि total number of ones मेरे odd रहे। और फिर मैं जब डेस्टिनेशन पे जाता हूं वहां मैं चेक करता हूं टोटल नंबर ऑफ वंस, अगर वो इवन हो गए हैं तो, क्योंकि मैंने रखा था कि भाई ऑड होंगे, है ना। हमने रखा था कि टोटल नंबर वंस हैव टू बी ऑड, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं वो इवन हो जाते हैं, अगर उसमें 1 बिट का एरर हो गया तो पता चलता है कि एरर था, है ना। इस तरह से अगर 3 बिट का एरर आ गया, 5 बिट का एरर आ गया, वो इस ऑड को इवन बना देगा। तो चूंकि हमारे पास ऑड पैरिटी है, हमारे पास यहाँ से इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, तो हमें सीधे पता चलेगा नहीं नहीं जनाब एरर आ गया है। इसी तरीके से अगर इवन पैरिटी होगी, इवन पैरिटी में क्या करते हैं हम काम कि जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं उनको हम पैरिटी बिट लगा के इवन बनाते हैं। अगर वो ऑलरेडी इवन है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इवन है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा ताकि वो टोटल इवन बने। फर्ज कीजिए यहाँ 3 वंस है तो मैं एक और ऐड करूंगा ना 1, तो बनेंगे 4, वो इवन बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वंस वी कीप एज इवन और इसको भेजते हैं डेस्टिनेशन पे। और अगर डेस्टिनेशन पे टोटल नंबर ऑफ वंस इवन के बजाय ऑड आ गए, जबकि हमने रखा था इवन पैरिटी, तो जबकि ये ऑड आ गए तो पता चला कि भाई साहब एरर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस यस, आस्क क्वेश्चंस। पूछे पूछे, कोई बात नहीं। कैमरा ऑफ किया, ओके। आप पूछे क्वेश्चंस अगर किसी को क्वेश्चन है। मैं ये भेजूंगा आपको, अब ये
पैरिटी बिट जो हम ऐड करते हैं, मैंने बताया आपको, या तो इवन पैरिटी होगा या ऑड पैरिटी होगा, जस्ट सी। अब पैरिटी जनरेटर और चक्कर, ये दो चीजें कि ये पैरिटी बिट को जनरेट करना, कि भाई अगर इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, अब ये पैरिटी बिट को हम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, कि डेटा को देखेंगे। अगर मेरे पास इवन पैरिटी है, फॉर एग्जांपल Zan, he has come up. अगर मेरे पास इवन पैरिटी है, फॉर एग्जांपल आई गॉट अ इवन पैरिटी, और मेरे पास डेटा आ रहा है, मैं इसमें नंबर ऑफ वंस को गिन रहा हूं, और मुझे नंबर ऑफ वंस इवन आ रहे हैं ना, तो पैरिटी बिट क्या होगी? 0. सो माय पैरिटी जनरेटर सर्किट विल जनरेट दैट 0 फॉर इट। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड आ रहे हैं और मेरे पास इवन पैरिटी है, सो पैरिटी बिट जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे हम? 1. तो पैरिटी जनरेटर शुड जनरेट 1 फॉर इट and put 1 there. This is the parity generator circuit doing. Does it make sense? ये कैसे हम करेंगे, ये XOR गेट एंड ऑल, इसके ऊपर काम करेंगे अब। तो देखिए इवन पैरिटी जनरेटर, ये इसके ऊपर ध्यान दें, ये इवन पैरिटी जनरेटर, ये 3 बिट इवन पैरिटी जनरेटर है हमारे पास। मेरे पास 3 बिट्स हैं ABC, उनकी कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन अप टू 1 1 1 हो सकती है ना। तो मैं सुहेल मकबूल को पूछूंगा, अगर मेरे पास इवन पैरिटी है, दैट मीन सुहेल साहब कि हम टोटल नंबर ऑफ वंस क्या रखना चाहते हैं, इवन या ऑड? सुहेल मकबूल, अगर इवन पैरिटी है, इवन रखना चाहते हैं ना, तो आप ही मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे 0 0 0 है तो ऑलरेडी ये इवन है, तो मुझे क्या यहाँ पे 1 लगाना चाहिए या 0 लगाना चाहिए? तो 0 लगाना चाहिए। आप ही मुझे बताओ, इस दूसरे के ऊपर यहाँ पे 0 0 1 है, 0 0 1, सो नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है इवन है? ऑड है। तो मैंने क्या रखी है? इवन पैरिटी। सो व्हाट शुड आई पुट हियर? 1, ताकि टोटल जो सारा बने मेरा पैरिटी बिट के साथ, यानी कि इस पैरिटी बिट के साथ। यस सर। पैरिटी बिट कौन सी है? ये वाली लास्ट वाली है ना, ये पैरिटी बिट है, इसके Yes, साथ sir. में टोटल 1 इवन बने, है ना? यस सर। गुड। सो अक्साम यासीन, जो नंबर नेक्स्ट है इसके बाद जो है मेरे ऑड नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है? ऑड। तो मुझे क्या लगाना चाहिए यहाँ पे? 1 लगाना। क्यों? क्योंकि मेरी कौन सी पैरिटी है? इवन पैरिटी। अगर हमारी ऑड पैरिटी होता तो इसका उल्टा करते हैं, तो 0 लगा। ऑड वाले में 0 लगाते हैं और इवन वाले में 1। वेरी गुड, आप तो अच्छे से समझते हो। यू शुड टॉक। अक्साम, आपको समझ आ रही है बेटा? आप अच्छे से समझ पा रहे हो, सो यू शुड आस्क रेगुलर क्वेश्चंस एंड ऑल। इससे इंटरेक्शन बढ़ती है ना, टीचर को भी पता चलता है कौन स्टूडेंट अच्छा है कौन नहीं है, क्योंकि कल इंटरनल्स आपको देने हैं वगैरह वगैरह। सो इससे एक इंप्रेशन बढ़ता है पहले से ही कि कौन सा बच्चा जो है पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? सो फॉल्स इंप्रेशन नहीं आए ताकि। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कौन आप में से अच्छा बच्चा है। जैसे अभी मुझे पता है कि एहसान है, सुमैया चिश्ती है या महरिश एजाज है, या गुड स्टूडेंट्स, ठीक है ना? सो कैसे? when they interacted with me, do you understand? So everybody should interact with me to give an impression to the teacher that you are a good student. That is important because कल के एग्जाम्स हैं, उसमें तो इंप्रेशन काम करता है ना, because we know who is better student and who is not a good student. Okay. Anyways, so अब नेक्स्ट किसी को पूछेंगे हम, नेक्स्ट पूछेंगे हम सबीना। इर्तिजा सोफी है यहाँ पे, इर्तिजा सोफी, आप बताओ बेटा। 0 1 1 इवन पैरिटी है। तो इवन पैरिटी है, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है ना, तो we will add what? 0. Similarly here, if it is even odd number of ones here, so I add 1 here. Here is even number of ones, so I add 0. Here is even number of ones, so I add 0. So odd number of ones, so I add 1. And our job is to create circuit for this who will generate your parity bit, if it is even parity or if it is odd parity. odd, अगर इसी का हम odd parity करते हैं, अगर इसी को odd parity करते तो वो क्या निकलता, जरा मुझे बताओ। अगर इसी चीज का हम odd parity करते, वो हालांकि इस नोट में नीचे है बन के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ, हेल्प करो इसकी। अगर हमारे पास यहाँ पे odd parity होता, ठीक है ना, अगर मेरे पास odd parity होता, ये कॉम्प्लीमेंट निकलता है इसका। एब्सोल्युटली इवन पैरिटी का, इवन पैरिटी का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट निकलता। जहां 0 था वहां 1 होगा, जहां 1 है जो 0 होगा, ठीक है ना?
तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यानी कि बिल्कुल ये जनाब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि अगर मुझे इसका सर्किट निकला A X और B X और C फॉर एग्जाम्पल, सो इसका क्या करेंगे फिर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ये इनके इक्विवेलेंस होंगे, A इक्विवेलेंस B इक्विवेलेंस C निकलेगा आंसर, यानी कि XOR का उल्टा कॉम्प्लीमेंट, दैट्स ना इक्विवेलेंस। तो अगर मुझे इवन पैरिटी का ये निकला तो ऑड पैरिटी का इक्विवेलेंस निकलने वाला है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर इसको मैं A, जैसे यहाँ पे इसने बनाया था थोड़ा सा, ये A XOR B है ना, तो अगर ये इवन पैरिटी था तो ऑड पैरिटी में इसको नॉट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे बस, और कुछ नहीं फर्क आएगी, है कि नहीं, बिकॉज मेरा जो यहाँ पे ऑड पैरिटी है वो बिल्कुल इसका उल्टा निकल रहा है ना, क्योंकि ऑड पैरिटी में जहां इवन है वहां 1 लगाना है और जहां ऑड है वहां 0 रखना है, ठीक है। अब इस चीज को हम पकड़ते हैं और डालते हैं के मैप के अंदर। अब के मैप में परेशानी है बहुतों को, उन्होंने मैंने वीडियो भी बनाया, वो भी नहीं देखेंगे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कर सकता हूँ कुछ मैं? अब इंसान बंदे के हाथ में हार्डवर्क होती है, वो करता है, लेकिन अब आप हार्डवर्क नहीं करोगे, दैट्स योर पार्ट। सो अब आपको के मैप समझ नहीं आता, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब इसको हम के मैप में डालेंगे। सो दैट मीन्स फॉर दिस इज योर 0, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7। सो हमारा है 0 1 1 0, यानी कि के मैप में जब होगा मैं, दैट इज 0 1 1 0, फिर उसके बाद है 1 0 0 1, दैट इज 1 0, फिर ये 0 यहाँ पे और 1, क्योंकि है ना 0 1 2 3, एक उधर एक करता है ना उधर, वो तो बता चुका हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। अब इसमें क्या कहीं पे ग्रुप बन सकता है? कैन यू मेक एनी ग्रुप? नो सर। तो कोई ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि एडजेसेंसी यहाँ पे है नहीं, कोई एडजेसेंट सेल इसके 1 में है नहीं है, क्योंकि हम कॉर्नर्स में नहीं जा सकते ना, हम डायगोनल्स में नहीं जा सकते, वी कैन गो ना राइट एंगल्स, हम 90 डिग्रीज पे, अगर यहाँ 1 हो तो हमसे ग्रुप बनाता, तो यहाँ कोई ग्रुप बन नहीं सकता, तो इसको हम सारे के सारा अकेले लेना पड़ेगा। सो अगर मैं इस 1 की बात करूं, ये वाला 1, इसके लेफ्ट में ये है ना, ये है 0, ये है 1, ये भूल गया लिखना यहाँ पे, ये 0 ये 1 है, ठीक है, क्योंकि A 0 1 और यहाँ पे B C है, ये पहला वाला B दूसरा वाला C। सो व्हाट इज दिस वन इक्वल टू, एक A इसका 0 है और B इसका 0 और C इसका 1 है ना, इसका टॉप में 0 1 है, लेफ्ट में 0, सो व्हाट इट विल बी, it will be A complement B complement C, that is this guy. What is this one equal to? A complement B C complement, that is this guy, A complement B C complement, है ना। Then what about this one? इसके राइट में 1 है और टॉप में 0 0, that means it is 1 0 0, यानी कि A इसका सीधे है, B complement है, C complement है। What about this one? इसके लेफ्ट में 1 है और टॉप में 1 1 है, यानी कि टोटल ये 1 1 1 है, यानी कि इसका A भी सीधे, B भी सीधे, C भी सीधे, ठीक, समझ आ रहा है? नाउ लुक एट इट। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई कर नहीं सकते, लेकिन इनको रीग्रुपिंग करके सिंपलीफाई बनाएंगे, ताकि हमारे पास XOR गेट्स निकले। सिंपलीफाई एक हो गया, सिंपलीफाई करना के मैप में, जब ग्रुपिंग हम करते हैं तो कोई वेरिएबल हम कट ऑफ करते हैं, एक वेरिएबल हटा दिया, 2 वेरिएबल हटा दिए, यहाँ वेरिएबल्स नहीं हट सकते, क्योंकि दे आर ऑल मिन टर्म्स, okay, they are what is called the prime implicants, we call them as the prime implicants, क्योंकि ये अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक चीज हो सकता है इनको, कि हम इनको रीअरेंज करके XORs में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां में OR गेट एंड AND गेट्स हैं उनको एक्सचेंज करके मैं XORs बनाऊंगा, ठीक है ना। सो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि A complement इनको कॉमन निकल सकता है, अंदर रहेगा B complement C और B C complement, सो B complement C and B C complement अंदर रहा, A complement बाहर। अब इन दोनों को लेते हैं, इसमें आप देखिए A और A बाहर निकल सकता है और अंदर रह सकता है B complement C complement और B C, रह गया है ना। तो अब अगर मैं इसको देखूंगा, दिस इज B complement C plus B C complement, सो दैट इज व्हाट इज इट, दैट इक्वल टू B, शाबाश, क्योंकि एक को कॉम्प्लीमेंट दूसरे को नहीं, XOR C। B XOR C 1000 बार आप पढ़ चुके ना, दिस इज B XOR C। अब यहाँ दोनों को कॉम्प्लीमेंट नहीं, सो व्हाट इज दैट, Equivalence. दैट इज इक्विवेलेंस, और B XOR C B complement। XOR C complement। Now if I say here let
y इज इक्वल टू बी एक्स और सी, यहां पे लिखता हूं मैं इसका, लेट y इज इक्वल टू बी एक्स और सी। अब यहाँ पे इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे यहाँ पे ताकि क्लियर हो। मैंने इस बी एक्स और सी की जगह y लिख दिया। सो व्हाट विल दिस इक्वल टू देन? दिस विल बी इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट y, क्योंकि बी एक्स और सी की जगह y आ गया ना, यहाँ पे लिखा ना बी एक्स और सी की जगह y, प्लस a बी एक्स और सी की जगह y लिखो, y कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज a y, ओके, एंड a कॉम्प्लीमेंट y plus a y complement. What is it equal to? ax और y. a x और y. अब y को वापस अपना वैल्यू दे दो, b x और c, और a that means a x और, that is this a x और, यहाँ पे लिखा हमने a x और, अब उसके बाद y का वैल्यू दे दो वापस। y, what is y का वैल्यू? b x और c, वो यहाँ पे लिखा। So in totality what is it equal to? a x और b x और c. So how we will make the gates? This is A, this is B. If I give the two XOR, I have got a XOR gate here. इसका आउटपुट निकलेगा, उसको मैं XOR करूंगा किसके साथ? C के साथ, XOR gate, and this will give me the parity generator bit. This will generate with the parity. So any, अब आप इसको ABC कोई भी दे दो, ABC कोई भी दे दो, ये ऊपर वाला जो आपका ये डायग्राम है इसके हिसाब से parity निकालेगा आपको, ये parity निकाल के देगा आपको। So this is a parity generator for 3-bit. Does it make sense what I'm doing? I will take on screenshot here. किसी को समझ नहीं आएगा मुझे बताएगा। Print screen. ठीक है ना? अगर इसका मुझे आप बताओ, अगर इसका इवन पैरिटी हमने लिया, अब ऑड पैरिटी होता तो क्या करते हैं इसका? अगर ऑड पैरिटी होगा, सो ऑड पैरिटी में क्या होगा? इसका उल्टा निकलेगा। Equivalence gate होगा instead of. So instead of this thing, we have to put up only one thing here. We have to put here not here. Put NOR gates, X NOR gates. यहाँ पे complement करना पड़ेगा। बस that is it. So we have that thing here. So जो इसका ये निकलेगा odd parity generator. Yeah. As you could see here, it's all उसका उल्टा है। So ये X और अगर हम बताएं ये X NOR है, ठीक है ना? तो इसका हमें सर्किट कैसे निकलेगा? तो इसका K मैप ये निकलेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे that is equal to A X और B था, अब ये A X NOR B आएगा and C X NOR C. It is actually A X और B X और C whole complement. Okay, ठीक है ना? That means you just complement them or you give the complement back to it. It becomes A equivalence B equivalence C. That means this basically becomes A X NOR B X NOR C. Does it make sense? We have 2 minutes left. And now parity chuck. What is a parity chuck? अब ये डेटा जो मैंने जनरेट किया यहाँ पे, ये मैं भेज रहा हूं। अब जो मैंने डेटा जनरेट किया यहाँ पे, डेटा जनरेट किया, अब 3 बिट्स नहीं, अब 4 बिट्स जाएंगी। 7 डेस्टिनेशन में कितने जाएंगी? 4। एक तो जाएंगी ये 3 बिट्स ABC और साथ में जाएगी ये पैरिटी बिट भी। सो यहाँ पे 000 नहीं जाएगा, 0001 जाएगा। इस तरीके से ये 1011 जाएगा, यानी कि 4 बिट्स जाएंगी। अब जब ये 4 बिट्स गई वहां पे डेस्टिनेशन पे 4 बिट्स गई, ठीक है, ये वाला, ये डेस्टिनेशन में 4 बिट गई, ठीक है, और मुझे निकल रहा है यहाँ पे, मुझे पैरिटी अब चेक करनी है, क्या पैरिटी इसकी 0 है या 1 है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 आ गया, क्या आ गया? अगर यहाँ पे 0 आ गया, सो अगर मेरे पास इवन पैरिटी है, फर्ज कीजिए, क्योंकि मेरे पास आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग बिकॉज आई हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे पास डेटा मान लीजिए ऐसे आ गया 0 0 0 0 0, ये आ गया, तो लास्ट वाली ये पैरिटी बिट है। मेरे पास ये 4 बिट डेटा था और 1 बिट पैरिटी का साथ लग के कुल बन गया 5 बिट। मैं डेस्टिनेशन में क्या करूंगा चेक इसको, क्योंकि ये इवन पैरिटी है, अगर इवन पैरिटी है या अगर ऑड पैरिटी, अगर ऑड पैरिटी है तो मैं चेक करूंगा नंबर ऑफ ऑल वंस शुड बी ऑड, अगर इवन पैरिटी है तो ऑल नंबर शुड बी इवन। फर्ज कीजिए मेरे पास ये वाला नहीं, ये वाला डेटा आ गया कुछ, ये लास्ट वाला मेरे पास आ गया 1 1 1 1 0 और मैं देख रहा हूं कि सर इवन पैरिटी है,
और मैं देख रहा हूँ कितने ones है मेरे पास, 1 2 3 4 even ही है, so I will declare there is no error. ठीक है ना, I will declare there is no error. लेकिन अगर मेरे पास यही आता ऐसे 1 1 1 1 1, so last bit was 1 for example, so how many bits I have now? 1. कितने ones है, odd है कि even है? 1 2 3 4 Odd. 5. Odd. So we declare, sir, there is an error. Okay, so this is called as error even parity chucker. We will do that next time because we are getting one now. It's a half a minute left. So anyways, do you have everybody clear concept what is parity and how we generate parity and how we detect parity? Then there is the thing called a correction. Correction में complex